Good morning, friends. Once again, we are back with one more video lecture of Physical Education Class 12th, first chapter Planning in Sports. My dear students, as you all must be knowing that in previous 6 video lectures, we are continuously discussing about this first chapter and we are almost going near towards the end of the chapter. Right? We are left with only 2 more topics for ending this chapter. So today in this session, we are going to talk about the second last topic also, which is intramurals and extramurals. But before that, a small portion of previous topic is left out. So we'll be discussing on that also. If you remember, last time we were discussing about fixtures and that too in league tournament. Before in the previous video lecture, we have discussed about knockout tournament. And in the last video lecture, we were discussing about league tournament. So I hope all of you have gone through that drawing the fixture of league tournament by staircase method and another one more method, right? So 2 methods were given over there by which we have learned that fixture. Now let's move forward with a small topic left in the same fixture topic, and then we'll move to the next topic, intramurals and extramurals. So let's start today's session with that small topic. Students, the name of the topic is Method of Declaring a Winner in League Tournament. How to declare a winner in the league tournament. Winner को कैसे declare किया जाए? Let's see. कैसे declare किया जाए मतलब ऐसे नहीं कि जो लास्ट मैच जीता वो तो विनर ही वही होगा ना, और क्या डिक्लेयर करे, उस सेंस में नहीं. मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ विनर मीन्स पॉइंट सिस्टम कैसे रहेगी उसके बारे में ज़्यादातर बात है. The team who obtains maximum points at the end of the tournament is declared the winner of the tournament. Obviously league tournament है, सबसे ज़्यादा जिसके point वो winner. The tournament point distribution is as follows. नीचे हिसाब से जो points है वो दिए जाएंगे. मैच जीतने वाले को हर मैच में 2 पॉइंट, हारने वाले को कोई पॉइंट नहीं, और अगर टाई या ड्रॉ होता है मैच तो 1 पॉइंट ईच. The tie or draw shall be broken as per the rules and regulations framed by the organizing committee. अगर tie और draw होता है तो organizing जो committee है, अगर हम as a school organize कर रहे हैं, then we will decide the rule कि अगर tie हुआ तो आगे और क्या किया जाएगा. So that's on us. These rules are predetermined and need to be followed till a winner is achieved. ये rules जो हैं वो क्या होने चाहिए, पहले से तय किए हुए होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आप on the spot नियम बनाओ, और ये तब तक फॉलो होने चाहिए जब तक कोई एक विजेता घोषित ना हो जाए. द टेक्निक्स ऑफ ब्रेकिंग अ टाई मे वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर टाई होता है तो आप विनर डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग अपने तरीके इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे फुटबॉल की बात करो, अगर मैच टाई हुआ तो पेनल्टी शूट आउट होता है. अगर आप क्रिकेट की बात करें, अगर मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर होता है. ऐसे हर स्पोर्ट्स के अपने अपने नीति नियम हैं. उस हिसाब से अगर टाई हुआ तो टाई को कैसे ब्रेक किया जाए और कैसे विजेता डिक्लेयर किया जाए ये वहाँ तय होता है. अब यहाँ पे 2 मेथड्स हमको दी गई हैं जिसके हम सीख पाएंगे कि कैसे विनर को डिक्लेयर करना चाहिए. 2 मेथड्स हैं, एक है अमेरिकन मेथड और एक है ब्रिटिश मेथड. आइए इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं. द फर्स्ट वन इज अमेरिकन मेथड. इन द अमेरिकन मेथड वी डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स by dividing the matches played by a team by the total number of matches in the tournament. जितनी मैचेस खेली हैं उसको डिवाइड करें टोटल कितने मैचेस थी टूर्नामेंट में उससे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 10 टीम्स प्लेइंग इन द टूर्नामेंट एंड इफ टीम ए विंस द 6 मैचेस, देन परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल्स टू मैचेस 1, यानी कितने मैच जीते थे 6, और नीचे टोटल मैचेस प्लेड. टोटल मैचेस प्लेड was 10. So 6 by 10 multiply by 100. So it will give you 60%. ये है अमेरिकन मेथड. अब सेकेंड वन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है ब्रिटिश मेथड. नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश मेथड. तो ब्रिटिश मेथड के अंदर क्या है? इन दिस मेथड वी डिवाइड द पॉइंट्स obtained by maximum possible points. For example, if there are 10 teams participating in a tournament and if team B wins 8 matches and 2 matches remains a draw, then the points will be calculated as
कैसे मिलेंगे टोटल पॉइंट्स? 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मैचेस जीते तो 16 पॉइंट वो, 2 टाई हुए या ड्रॉ हुए तो एक एक पॉइंट के हिसाब से 2 पॉइंट्स वो, टोटल हो गए 18 पॉइंट्स। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स कितने थे? 20। अगर 10 के 10 मैचेस जीतता तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स। वहाँ क्या था? मैचेस वन, वहाँ मैचेस के आधारित था और यहाँ पॉइंट्स पे ऊपर डिपेंडेंट है। टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन 18, टोटल हो सकते थे 20, मतलब 90% ऑफ पॉइंट्स टीमों को मिले। तो ये होता है मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ विनर। कैसे विनर तय किया जाए और कैसे पॉइंट सिस्टम रही उसकी बात। अब बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर लास्ट वन है जुड़ा हुआ, उसके बाद हम वो मेन अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं अगला ये एक टॉपिक। दिस टॉपिक इज कंसोलेशन टूर्नामेंट। क्या मतलब है इसका? आइए देखते हैं। इन कंसोलेशन टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट बाय कंपीटिंग विथ ईच अदर इन कंसोलेशन टूर्नामेंट। अब टीमें जो हार चुकी हैं, अब वो आगे जानी तो है नहीं, उनको टूर्नामेंट जीतनी तो है नहीं, इसलिए उनको आश्वासन मिला रहे, कंसोलेशन यानी आश्वासन मिला रहे, उसके लिए उनके बीच में भी मैचेस खिलाई जाती हैं। होता है ऐसा, आपको पता होगा। टीम जब हार जाए तब उनके बीच में भी मैचेस होती हैं, कई बार नेक्स्ट रैंक तय करने के लिए। फाइनल सेमीफाइनल में 4 टीमें हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट हार गई, मान लीजिए फोर्थ हार गई, सेकंड और थर्ड फाइनल में पहुंचे हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में जो है वो वापस से मैच होगा, क्योंकि पहले 2 नंबर पे तो वही टीम आएंगी जो फाइनल में है, लेकिन तीसरे नंबर पे कौन सी टीम आएगी ये तय करने के लिए कंसोलेशन मैच रखा जाता है। तो ऐसे ही बड़ी टूर्नामेंट हो, बहुत सारी टीमें बाहर हुई हों, तो उनके लिए एक कंसोलेशन टूर्नामेंट होता है। इट इज़ हेल्ड अमंग द लूजिंग टीम्स, ऑब्वियसली जो हारी हैं उनके बीच में होगा। अ कंसोलेशन टूर्नामेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं। टाइप नंबर ए, द टीम्स विच आर डिफीटेड ओनली इन फर्स्ट राउंड प्ले विथ ईच अदर फॉर द कंसोलेशन प्राइज। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है? द टीम विच आर डिफीटेड इन ऑल राउंड्स गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द सेम राउंड। मतलब जो टाइप ए किसको बोलेंगे? जो पहले राउंड में टीमें हार गई हैं उनके बीच में ही कंसोलेशन प्राइजेस के लिए मैचेस हों तो उनको। और टाइप बी किसको बोलेंगे? सारे राउंड में जो अलग अलग पोजीशन पे बाहर निकलती आ रही हैं टीमें, उन सब हारी हुई टीमों के बीच में अगर हम मैच खिलाएं तो दैट विल बी टाइप बी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लिखा हुआ है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 8 टीम्स, तो नीचे फिक्सचर ऑफ 8 टीम्स दिया हुआ है ना, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8 के बीच में। नॉर्मल जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट होता है पूरा, वैसे नॉकआउट टूर्नामेंट का राउंड दिया हुआ है। अब करना क्या है, कंसोलेशन कैसे होगा ये हमको दिखाना है। तो इस एक ही एग्जाम्पल के अंदर हम दोनों टाइप के कंसोलेशन दिखा देंगे कि कंसोलेशन टाइप ए हो तो वो कैसे होगा और 2 हो तो कैसे होगा। तो ये जो फिक्सचर ड्रॉ किया हुआ है वो क्वेश्चन में ही गिवन है कि मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुई थी और फर्स्ट हार गई, सेकंड गई आगे के राउंड में, थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ गई, फिफ्थ एंड सिक्स में से सिक्स गई, सेवन्थ एंड एथ में से एथ गई आगे। मतलब कौन कौन सी टीमें हार गई? 1, 3, 5, 7 ये टीमें हार गई। तो अब हारी हुई टीमों के बीच में जो कंसोलेशन टूर्नामेंट होगा वो इस केस में कैसे होगा वो आइए ज़रा देखते हैं। हमने ऊपर बात की 2 टाइप हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। दोनों की हम इस एग्जाम्पल में बात करेंगे, टाइप ए से हुआ तो कैसे और टाइप बी से हुआ तो कैसे। तो सबसे पहले टाइप ए के बारे में बात करते हैं। टाइप ए में क्या लिखा है? इन द अबव टूर्नामेंट द टीम लॉस्ट इन राउंड 1 आर 1, 3, 5, 7, तो उन्हीं के बीच में मैच खेला जाएगी। तो देखिए 1 और 3 के बीच में एक मैच हुई, 5 और 7 के बीच में। 1 और 3 में से मान लीजिए 1 जीता, 5 और 7 में से 7 जीता, तो फाइनल 1 और 7 में से मैच होगी, उसमें मान लीजिए 1 जीता, सो 1 इज़ द विनर। विनर मीन्स नॉट ऑफ द टूर्नामेंट, बट जो हारी हुई टीम है उनमें से टॉप का लीडर जो विनर है वो। तो ऐसे कंसोलेशन मैचेस होती हैं अगर पहले राउंड में जो हारे हैं वो, है ना। तो ये हो गया टाइप ए। अब अगर टाइप बी होता तो क्या होता? तो इन द सेम टूर्नामेंट द टीम लॉस्ट इन द राउंड 1 आर 1, 3, 5, 7, टीम लॉस्ट इन द राउंड 2, आप देखिएगा फिक्सर पीछे, टीम लॉस्ट इन द राउंड 2 आर विच वन? आर 4 and 8, एंड द टीम लॉस्ट इन राउंड 3 इज 6। तो 4 टीमें पहले राउंड में, 2 टीमें दूसरे राउंड में और 1 टीम तीसरे राउंड में। कुल कितनी टीमें हारी हैं?
कुल 7 टीमें हारी हैं। तो अब कैसे होगा, देखिए 1 3 5 7। अब क्योंकि 1 3 5 7 पहले राउंड में से बाहर हुई थी, इसीलिए कंसोलेशन टूर्नामेंट में भी वो पहले राउंड में खेलेंगी। तो 1 की 3 के साथ मैच हुई, 5 की 7 के साथ। मान लीजिए 1 और 3 में से 1 जीता था, 5 और 7 में से 7 जीता है। तो 1 और 7 ये 2 विनर होके आए हैं। अब ये 1 और 7 जो विनर होके आए हैं, वो जो दूसरे राउंड में जो टीमें हारी थी वो यहाँ दूसरे राउंड में खेलेंगी। 4 और 8, तो 1 के सामने 4, 7 के सामने 8, तो 2 मैचेस होंगी। मान लीजिए 1 और 4 में से 1 जीता और 7 और 8 में से 7 जीता। तो अब क्या होगा, 1 और 7 इनके बीच में मैच होगी। 1 और 7 में से जो जीतेगा, मान लीजिए 1, उसकी मैच होगी थर्ड राउंड में जो टीम हारी थी, और वो कौन सी थी, 6 नंबर की टीम। इसीलिए 1 के साथ 6 की मैच होगी। फिर जो जीता वो फाइनल विनर। तो ये है टाइप बी कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। तो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में 2 टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। सिर्फ पहले राउंड की बात करें तो टाइप ए है, और अगर हर राउंड की बात करें तो वो टाइप बी है। तो ऐसे होते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। तो ये 2 छोटे से टॉपिक हमने देखे, एक तो मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग अ विनर एंड एक कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। ये 2 टॉपिक उस प्रीवियस टॉपिक के बाकी थे जो हमने आज लिए। अब इसके बाद जो है वो हम अपने अगले मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स। इसके बारे में सबसे पहले मीनिंग आएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आएगा। तो आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, इंट्राम्यूरल्स यानी क्या। द वर्ड इंट्राम्यूरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इंट्रा, मतलब होता है विद इन, एंड म्यूरस, मतलब होता है वॉल्स। So those activities or events or sports which are played within the walls or a covered region or a campus, for example a school or institution, are called intramurals. ऐसे sports जो 4 दीवारों के अंदर होते हो, एक कैंपस में होते हो, ऐसे स्टूडेंट्स, इंडोर गेम्स जिसको हम बोलते हैं, they are called intramurals. Intramurals are one of the eminent methods of motivating the students in a school or an institution to participate and perform well in the competition. ये एक अच्छा ज़रिया है। अब आप स्टूडेंट्स लेवल पे हैं, तो जो इंडोर गेम्स हैं वो एक डेवलप करने का, स्टूडेंट्स के लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही काम आए ऐसे गेम्स हैं ये। देयर इज़ नो डाउट दैट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स बीइंग कंडक्टेड इन स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टुवर्ड्स फिजिकल फिटनेस एंड वेलबींग, बट इंट्राम्यूरल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दैट डेवलपमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है, स्टूडेंट्स में फिजिकल फिटनेस और कैसे अच्छा बिहेव करना है, इन सब के बारे में जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो इनमें अवेयरनेस क्रिएट होती है। लेकिन ऐसे इंट्राम्यूरल्स यानी इंडोर गेम्स खेलने से एक अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट होता है उनमें। ऑन वन साइड वेयर अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, zonal, state and national level tournaments are organized every year, and students or participants do not get chances of participating over there. The intramural sports provide plenty of opportunities to the students for participating in competition and showing their abilities voluntarily within the same school or institution. कई बार क्या होता है, भले जोन लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, बहुत सारे लेवल पे गेम्स होती हैं, बहुत सारी गेम होती है, लेकिन स्टूडेंट्स भी तो इतने ज़्यादा हैं, हो सकता है सबको सब स्पोर्ट्स में खेलने का चांस ना मिलता हो। तो जिनको चांस नहीं मिलता है उनके लिए दिस वन इज़ अ प्रॉपर वे टू शो देयर टैलेंट, so that they can show the talent on school level or institution level. So it's a good chance for them. These recreational sports activities really work as a source of physical and mental development of the student by boosting their efficiency and sportsman spirit. भाई जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है वो पता चलता है, खेल दिली की भावना क्या होती है पता चलती है। लेकिन जैसे हमने कहा, हर बंदे को तो एक्स्ट्रा ऑन द ग्राउंड खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आप क्रिकेट आपको देखना बहुत पसंद हो, समझ में बहुत अच्छे से आता हो, बट बिकॉज यू आर नॉट अ गुड प्लेयर सो यू माइट नॉट गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड बिलीव मी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन योर लाइफ, राइट? सो for them who are not able to play in the outside games, these inside games plays a big role for the development and for boosting up their efficiency and their spirit. तो ये मतलब है इंट्राम्यूरल गेम्स का। आइए अब ज़रा इसके बारे में बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ओरिजिन की अगर हम बात करें,
It was seen in the ancient period that children used to play and perform many physical activities within the walls of the school. पहले के ज़माने में पाया गया कि बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर खेलते हैं. As time passed, these activities developed in a systematic way and they were named intramurals. जैसे जैसे आगे आगे चीज़ें बढ़ती गई, ऐसे ऐसे इनको एक अच्छा टेक्निकल नाम मिला और वो है इंट्राम्यूरल्स. इन 1864 द फर्स्ट इंट्राम्यूरल ऑफ बेसबॉल वॉज ऑर्गेनाइज इन यूएसए. याद रखिएगा, दिस कैन बी ए 1 मार्क क्वेश्चन. सबसे पहले 1864 में बेसबॉल के लिए इंट्राम्यूरल गेम खेली गई यूएसए के अंदर. आफ्टर दैट इन द early 20th century, physical education teachers also showed their interest in intramural sports. Ohio State University and the University of Michigan created the first intramural sports department in 1913. 1913 में पहली बार ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने पहली बार ये इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्रिएट किए. 1913 यानी 20वीं सदी के शुरुआत में. एल्मर मिशेल, a graduate student, was named the first director of intramural sports at the University of Michigan in 1919. याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन. एल्मर मिशेल, the first director of the intramural sports. And the first recreational sports facility in the country opened at the University of Michigan. Michel is considered as the father of the intramural sports in. याद रखिएगा, one of the most important 1 mark question. Who is the father of intramural sports? Michel आगे नाम आया ना, एल्मर मिशेल. तो एल्मर मिशेल is the father of intramural sports. In 1925, every high school in USA established the intramural sports department. आगे बढ़ते बढ़ते 1925 में यूएसए की ऑलमोस्ट हर हाई स्कूल ने ये इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट जो है वो रखे थे. तो ये है कुछ ओरिजिन के बारे में डिटेल्स. आइए अब ज़रा बात हो जाए सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स. क्या इंपॉर्टेंस है इन इंट्राम्यूरल गेम्स का, है ना, इसके बारे में. जैसे नंबर 1 बहुत सिंपल है, आप पढ़ के समझ सकते हैं, बट लेट्स गो थ्रू क्विकली. दे अलाउ द स्टूडेंट्स टू डेवलप ग्रोथ skills and fine-tune motor skills with coordination, movement, strength, grace and speed, and also find healthy outlets for energy. क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, ग्रेस, स्पीड, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये जो सारी स्किल्स हैं, इनमें ये बढ़ोतरी करते हैं. नंबर 2, दे इंस्टिल डिसिप्लिन एंड बिल्ड अ रेपो अमंग द स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये डिसिप्लिन की भावना क्रिएट करते हैं. स्पोर्ट्स खेले मतलब कहा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन आर द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन्स. तो उनमें डिसिप्लिन की भावना विकसित होती है. दे हेल्प द स्टूडेंट्स टू अवॉइड ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ना अगर आपको खेलना है अच्छे लेवल पे तो आपको फिट रखना है. फिट आप तब रह पाएंगे जब इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे. सो ऐसे स्पोर्ट्स के कारण यू कैन अवॉइड ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स. दे टीच द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड स्पोर्ट्समैनशिप बाय डेवलपिंग द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डिफीट ग्रेसफुली, विच इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड रिक्विजिट स्किल फॉर सक्सेस. लाइफ में कभी भी सक्सेस होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तो मैच्योर होना, मैच्योरिटी दिखाना हर बात में. हर बात में मतलब कभी आपकी हार भी हो, स्पोर्ट्स है, आप 365 दिन नहीं जीत सकते. इफ़ यू लूज सम डे यू नीड टू एक्सेप्ट योर डिफीट ग्रेसफुली. यू कैन नॉट एवरी टाइम गेट एंग्री एंड यू कैन शो योर एक्सप्रेशंस और फ्रस्ट्रेशन. नो, यू कैन नॉट डू दैट. यू हैव टू एक्सेप्ट द डिफीट ऑल्सो एंड वेरी ग्रेसफुली, not in anger. So this teaches you the teamwork and sportsmanship. Next one is they encourage healthy competition among participants. Obviously इनके कारण participation और competition की भावना डेवलप होती है. They teach students to shine under pressure and to cope with nerves and performance anxiety. नर्वसनेस हो, परफॉर्मेंस करने की जो एक ज़रूरत हो, प्रेशर हो, उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे काम करना है, ये बच्चों को इससे सीखने मिलता है. और उसको वो इस सीखी हुई चीज़ को वो आगे अपने रियल लाइफ में एग्ज़ाम्स में भी वो अप्लाई कर सकते हैं. तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस इन इंट्राम्यूरल गेम्स का. लेट अस नाउ डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंट्राम्यूरल्स. क्या हेतु हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों होना चाहिए? लाइक नंबर 1, टू प्रोवाइड होलसम एंड हेल्थी एक्टिविटीज़ फॉर रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन फ्रॉम स्ट्रेस न स्कूल वर्क एंड फास्ट एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी फॉर बोथ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स. सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये. तो क्या करते हैं ये? एक रिलैक्सेशन की आपको एक फीलिंग देते हैं. किस में से? रूटीन स्कूल वर्क या फिर
बहुत सारा प्रेशर जो आपके ऊपर रहता है काम का, उसमें से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलता है. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड इक्विपमेंट, facilities and encourage the wholesome participation in a large number of sports activities by students, faculty and staff members. इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि वो बाहर खेलने वाले गेमों में तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसीलिए आपको इन खेलों को खेलने के लिए बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज़ टू स्टिम्युलेट एन इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स एंड रिक्रिएशन थ्रू अ हाई क्वालिटी प्रोग्राम. एथलेटिक्स जैसी चीज़ें हैं जो शायद इतनी फेमस ना हो क्रिकेट जितनी या फुटबॉल जितनी, उनमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये काम आती है. नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड an opportunity to develop sportsmanship in the individuals. As I said earlier, if you play the games, you will develop the feeling or you will develop the skill of sportsmanship. You will behave with each and everyone properly. You will accept the defeat also and you will appreciate the winning also. Last one is to provide an opportunity to learn the important values developed through the team spirit and cooperation. Team spirit and cooperation के साथ जो अलग अलग भावनाएं विकसित होती हैं, उनके बारे में भी इनसे सीखने मिलता है. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू बिलोंग टू अ ग्रुप एंड डेवलप अ सोशल बिहेवियर. इससे ये फीलिंग होती है कि हम एक ग्रुप के हिस्से हैं, हम एक सोसाइटी के हिस्से हैं, अकेलापन महसूस नहीं होता है, टीम में खेलते हो आप, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सोशल कॉन्टेक्ट्स एंड फ्रेंडशिप्स विच कुड नॉट बी रेडीली बी डेवलप इन द क्लासरूम. When you are learning in the classroom, you just are sitting with few of your friends, nothing else. But when you go outside, when you play for the games, intramural games, you play at the different level, you'll be having so many different contexts, so many high reputed persons will know, sports person will know, authorities will know you, so you'll increase your contacts. So this is also one of the objective. Next one is to provide an opportunity to every student, regardless of his or her ability, to realize a joy and fun of participating in their favorite sports. मतलब एक खुद के फेवरेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का क्या मज़ा होता है, वो हर स्टूडेंट्स को फील हो, वो एक ऑब्जेक्टिव है इसका. तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इन इंट्राम्यूरल गेम्स के. आइए अब बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन. इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ डिमांड प्रॉपर अटेंशन while getting selected. There are basically two aspects which should be kept in mind while including the activities in intramural competition. दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स किस में इंटरेस्टेड हैं, एंड सेकंड इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज. स्टूडेंट्स तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन क्या स्कूल के पास फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट ऑल्सो यू मस्ट बी लुकिंग एट. अनदर एसेंशियल फैक्टर दैट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड इज़ दैट द एक्टिविटी मस्ट प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने के लिए मिलना चाहिए. द गोल ऑफ फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी अचीव्ड. सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट होना ही चाहिए, सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलना है. अब जैसे देखिए नीचे कुछ कैटेगरी दी हैं, कौन कौन सी गेम्स उसमें हो सकती हैं उनके बारे में लिखा है. जैसे मेजर गेम्स कौन कौन सी हैं, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. माइनर गेम्स कौन सी हैं, खो खो, टैग गेम्स, सेक रेस, शटल रन. कॉम्बैट स्पोर्ट्स कौन से हैं, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे. क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, मॉडर्न आर्ट, ये सब उसमें आती हैं एक्टिविटीज़ में. रिथमेटिक्स कौन सी हैं, सोलो डांस, फोक डांस, ग्रुप डांस. सो लिखा है there are many more activities to be selected depending upon the region and prevailing sports played in that particular region. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि इस टेबल में लिखी हैं वही हैं. रीजन के हिसाब से, हर रीजन की अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ और इसके अंदर हो सकती हैं. लिखा है द टेबल शोन अबव इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऊपर जो टेबल दी है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई यूनिवर्सल नहीं है कि इतने ही स्पोर्ट्स हैं और इस कैटेगरी में इतना ही आता है. ठीक है, तो ये थी कुछ कैटेगरीज. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक पूरा हुआ इंट्राम्यूरल्स, जो इंडोर गेम्स जिसको हम कहते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्राम्यूरल्स. जैसे इंट्राम्यूरल्स हमने पूरा पढ़ा, डिटेल में समझा उसको, ऐसे ही अगला टॉपिक है एक्स्ट्राम्यूरल्स. आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. ऐसे आपको बताया मैंने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बट लेट्स रीड द थियरी, लेट्स गो इन डिटेल व्हाट इट सेज. Extramural sports provide an opportunity to the students to compete against teams from other schools or institution. वहाँ क्या था, सेम स्कूल सेम इंस्टीट्यूशन. यहाँ क्या है, it gives you an opportunity
to compete with other teams, other schools, other institutions. The word extramural is derived from Latin words extra and muros, which means outside the walls of an institution or school. स्कूल और इंस्टीट्यूशन के दीवारों के बाहर जो गेम्स खेली जाएं, दे आर extramurals. The inter-school competitions, state and regional tournaments and national tournaments reflect and represent the extramurals. ये जो सारी टूर्नामेंट होती हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जैसे हमने की थी, या फिर स्टेट लेवल की या तो नेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स, दे आर extramurals. Basically, these competitions involve a number of teams, schools और clubs competing with each other. इनके अंदर बहुत सारी schools, teams या club एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं. The fixture and dates of these competitions are decided and declared in advance, allowing the adequate time to the participants to prepare. इनकी dates और fixture पहले से ही पूरा बता दिया जाता है ताकि participants जो हैं वो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ. तो ये है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में. नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल्स. क्या महत्व है एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स का. आइए पढ़ते हैं. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज द पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट. पहले इंडोर गेम्स से बहुत फ़ायदा होता था, बहुत काम की थी, बट जब तक एक्स्ट्राम्यूरल्स यानी कि आउटसाइड द वॉल गेम्स ना हो तब तक फिजिकल एजुकेशन का कोई देखने जाए तो मतलब ही नहीं है, इनकम्प्लीट है वो उसके बिना. जैसे सिग्निफिकेंस कुछ नीचे दिया हुआ है. नंबर 1, लाइक इंट्राम्यूरल्स द एक्स्ट्राम्यूरल्स ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू शो कैपेबिलिटीज एंड एफिशिएंसी बट ऑन अ क्वाइट वाइडर प्रॉस्पेक्ट. इंट्राम्यूरल्स की तरह ये भी आपको अपना एक टैलेंट दिखाने का मौका देती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा बड़े स्टेज पे. वहाँ लिमिट थी इनसाइड स्कूल, यहाँ बहुत बड़े स्टेज पे मौका मिलता है. Second is the school teams participating in the competition have an opportunity to perform extraordinarily and put feathers in the glory hat of the institution by winning. इससे मौका मिलता है टीमों को कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें. एंड क्या लिखा है, पुट फीदर्स इन द ग्लोरी हैट. एक स्कूल का जो ग्लोरी होता है, एक जो चार्म होता है, एक जो उसका लेवल होता है, उसकी जो प्रख्यात है स्कूल, उसकी प्रख्याति में एक और होता है ना, एक और जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि एक और फीदर, पंख, एक और पंख जोड़ना उसके अंदर, वो इससे आपको मौका मिलता है. नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्राम्यूरल्स हेल्प इन बिल्डिंग मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन टू द प्लेयर्स. इससे मोटिवेशन मिलता है, मोरल अप होता है प्लेयर्स का. नेक्स्ट वन इज द एडिक्वेट एंड मच रिक्वायर्ड नॉलेज अबाउट एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज ऑल्सो अचीव्ड थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्राम्यूरल्स. इसमें से पार्ट लेके आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में जब आप पार्ट लेते हैं तो. दे रिवेटलाइज द स्कूल डे करिकुलम बाय प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो बूस्ट अप फिजिकल एफिशिएंसी. स्कूल के वातावरण से कुछ नया मिलता है और फिजिकल एफिशिएंसी और हेल्थ में भी सुधार होता है, बूस्ट अप मिलता है. तो ये सारे फ़ायदे हैं, ये सारा सिग्निफिकेंस है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ का. Now let's talk about the last topic of today's our video lecture, that is objectives of extramurals. क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे नंबर 1, to develop an appreciation as well as admiration of the world of sports and physical education programs. स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में एप्रिसिएशन डेवलप हो आपके अंदर, ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है. टू डेवलप गुडविल अमंग द डिफरेंट स्कूल कॉम्पिटिंग. गुडविल एक आपका एक अच्छा सा नाम बनता है डिफरेंट स्कूल्स, जो अलग अलग स्कूल्स पार्ट ले रही हैं उनके बीच में. टू एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स कंपटीशन. स्पोर्ट्स की कंपटीशन क्या होती है, कितना टफ होता है, ये पता चलता है, आपको अनुभव मिलता है इसका. टू प्रमोट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड सोशल बिहेवियर अमंग्स प्लेयर्स. इससे आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और सोशल एक बिहेवियर कैसे होता है वो आप में डेवलप होता है. टू जनरेट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लैंड मोरल सपोर्ट टू अदर्स. इससे आपके अंदर खुद के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और दूसरों के साथ कैसे रहा जाए अच्छे से ये पता चलता है. टू लर्न टू बी अ डिसिप्लिन पार्टिसिपेंट और अ स्पेक्टेटर. डिसिप्लिन पार्टिसिपेंट कैसे आप बन सकते हैं या एक अच्छे ऑडियंस आप कैसे बन सकते हैं वो आपको सीखने मिलता है. टू डेवलप
skills in the various sports that may lead to successful participation in inside or outside school or class. इससे वो चीज़ें डेवलप होती हैं जो आप स्कूल में भी इसके या क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए काम आती हैं. नेक्स्ट इज़ टू डेवलप स्पीड, एंड्योरेंस एंड एजिलिटी इन प्लेयर्स. स्पीड और ये सब चीज़ें आपकी इंक्रीज होती हैं, ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी. नेक्स्ट इज़ टू ग्रेजुअली एक्सपांड द ग्राफ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन. इससे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की भी तो बढ़ोतरी होती है, सिर्फ आपकी नहीं, उनकी भी तो रेपुटेशन बढ़ती है. एंड द लास्ट वन इज़ टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस of various sports and also enhancing the skills and tactics required to play them efficiency. इससे आपको पता चलता है कि लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, और क्या स्किल्स ज़रूरी हैं, क्या टैक्टिक्स यानी क्या प्लानिंग ज़रूरी है इनको अच्छे से खेलने के लिए. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स जो आउटसाइड द वॉल्स खेली जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स. अब एक ही टॉपिक बाकी रह जाता है जो हम अगले लेक्चर में लेंगे. उस टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम. अलग अलग स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं थ्रू आउट द ईयर, जैसे स्पोर्ट्स डे है, जैसे रन फॉर फन है, रन फॉर यूनिटी है. ऐसे 5 अलग अलग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन लास्ट टॉपिक में आएगी जो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे. इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करेंगे. इससे पहले कि हम वाइंड अप करें हर बार की तरह, तो होमवर्क फॉर यू पीपल फॉर टुडेज सेशन वुड बी 2 questions. Question number 1, explain in detail intramural games, their origins, their significance and objectives. And question number 2 is talk about extramural games, their significance and objectives. So ये 2 questions आज के आपके होमवर्क में रहेंगे जो आपको इस वीडियो लेक्चर को सीखने के बाद करना है. Fine, so let's wind up this session today. So thank you so much students. Again, we'll meet in the next class and we'll go forward. Till the time, have a good day, have a good time. Take care of yourself and your family. Stay home, stay safe. Don't be over smart to go outside. Please, please, please be at home and take care of yourself. Fine. Thank you so much. Have a good day.